Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we discuss your chapter 7th, the climate of India. In this chapter, topics is going on seasons. Basically, four type of season: winter, summer, rainy, and returning monsoon. Winter season and hot weather season, we can say summer season, we already discussed in previous videos. So today we discuss here the rainy season or the southwest monsoon season. Okay, it's also known as advancing monsoon season. Okay, the rainy season or the southwest monsoon season. Okay, and rest part of this topic we discuss in next video. Okay, so we start here the rainy season or the southwest monsoon season. First of all, duration. The rainy season in India start with the onset of the southwest monsoon in June and last until September. मीन्स आपका ये जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है जब आपकी साउथ वेस्ट मानसून टॉप पे नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड ईस्ट. ओके, सो व्हेन योर साउथ वेस्ट मानसून आपके इंडिया में एंटर करती है दैट टाइम स्टार्ट होती है आपका रेनी सीजन. ओके, ऑन सेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. साउथ वेस्ट मीन्स दिस विंड कम फ्रॉम साउथ वेस्ट. दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, और दिस विंड कम फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन. दैट्स व्हाई कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून. ओके, सो ये स्टार्ट होता है जून मंथ टू until September month तक. Okay, this is your duration of rainy season. After that, temperature all over the country begin to fall as the monsoon rainfall intensify. मीन्स जैसे ही ये सीजन रेनी सीजन स्टार्ट होता है रेनफॉल स्टार्ट होती है ऑल ओवर कंट्री में. ड्यू टू दैट हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज होना स्टार्ट होता है. begin to fall due to the rainfall. Temperature all over the country begin to fall due to the rainfall. मीन जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है टेम्परेचर लिटिल बिट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है ऑल ओवर द कंट्री. ओके, बट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान स्टिल हैव टेम्परेचर रीचिंग अप टू 40 डिग्री सेल्सियस. बट हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न, दिस इज वेस्ट और नॉर्थ, ये बीच का जो पार्ट है जिसमें राजस्थान वाला पार्ट, स्टिल नाउ यहाँ पर टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस बना रहता है. ओके, सो टेम्परेचर ऑल ओवर द कंट्री बिगिन टू फॉल ड्यू टू द रेनफॉल एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एंड डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान स्टिल हैव टेम्परेचर reaching up to the 40 degree Celsius. This is your temperature in our country during the rainy season. Okay, and after we talk about pressure and wind, so the temperature in the northwestern plain are still very high. We already discussed now कि temperature in northwestern part reaching up to the 40 degrees Celsius means here कि the temperature northwestern plain are still very high. So as a result, which low pressure conditions prevail here. So that means temperature high होने की वजह से pressure low create रहता है. Okay, so by early June the low pressure conditions are powerful enough to attract the trade winds of southern hemisphere. We not all here trade winds going on its directions south east. Okay, ये मूव कर रही है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ. ओके, सो दैट टाइम इन द मंथ ऑफ जून हमारी कंट्री में टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि प्रेशर टू मच लो हो जाता है
और प्रेशर इतना ज़्यादा लो होने की वजह से ये अट्रैक्ट करता है दीज साउथ ईस्ट विंड्स को टुवर्ड्स द मेनलैंड, और दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स व्हेन दे क्रॉस द इक्वेटर दे टर्न द राइट साइड. We already discussed कि Coriolis effect. Due to the Coriolis effect, Coriolis effect means कि in other hemisphere the wind direction deflect means change होना. In other hemisphere they turn the right side और southern hemisphere turn the left side. always क्या होता है कि आपकी विंड होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो सदर हेमिस्फीयर में राइट साइड होती है और लेफ्ट में सदर हेमिस्फीयर टर्न द लेफ्ट साइड, तो इसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाती है इन द सदर हेमिस्फीयर. बट व्हेन दीज ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर एंड ड्यू टू द कोरियस इफेक्ट दे टर्न द राइट साइड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है. ओके, सो बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस आर पावरफुल इनफ टू अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर. कि सदर्न हेमिस्फीयर जो ट्रेड विंड्स है वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द लैंड. क्यों हो रही है? बिकॉज ड्यू टू द लो प्रेशर कंडीशंस इन द लैंड पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ओके, सो दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर ओशनिक ओरिजिन, और ये जो साउथ ईस्ट विंड्स है ये ओशियन में ऑरिजिनेट हो रही है. और कौन सा ओशियन यहाँ पर? हमारा इंडियन ओशियंस. ओके, सो coming from the Indian Ocean, they cross the equator and enter in the Bay of Bengal. This is Bay of Bengal. Sorry, this is Bay of Bengal, or this is Arabian Sea. This one, Bay of Bengal, or this one, Arabian Sea. Okay, so these southeast trade winds are oceanic origin. ये और oceanic से means ocean से start हो रही है, and after that enter the Bay of Bengal and Bay of Bengal और Arabian Sea दोनों में enter कर रही है. Okay, and after that the Arabian Sea as southwest monsoon. After crossing the equator, when these southeast trade winds cross the equator, they are deflected. That means change होना towards the right due to the Coriolis effect. अपने वो राइट साइड टर्न हो जाती है. ओके, राइट साइड टर्न होती है, उनकी डायरेक्शंस साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट हो जाती है. ओके, एंड आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे फ्लो और साउथ वेस्टली डायरेक्शंस. जब इक्वेटर क्रॉस करेंगे उनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाती है. ओके, दिस इज व्हाई दे आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून. तब इनको हम साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज दे कम फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शंस. ओके, because they come from south west directions. Okay, so it's very simple. Just we'll revise again here. Temperature or pressure conditions during the rainy season in our country. So temperature all over the country begin to fall as the monsoon rainfall started. जैसे rainfall start होती है temperature थोड़ा सा decrease होना start होता है. But now these days in the northwestern part and desert area of Rajasthan, temperature reaching near about 40 degrees Celsius temperature. Okay, and that time temperature high होने की वजह से जून मंथ में यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा लो होता है कि वो इनफ होता है टू अट्रैक्ट द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की तरफ. ओके, और दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स व्हेन दे क्रॉस द इक्वेटर दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट साइड ड्यू टू द कोरियलिस इफेक्ट. कोरियलिस इफेक्ट क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे टर्न द राइट साइड और सदर्न हेमिस्फीयर टर्न द लेफ्ट साइड. ओके, सो इनकी डायरेक्शंस साउथ ईस्ट से फिर साउथ वेस्ट हो जाती है ड्यू टू द कोरियलिस इफेक्ट. ओके, एंड दीज ट्रेड विंड्स एंटर इन द अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल. ओके, नाउ रेनफॉल. यू नॉट ऑल वी ऑलरेडी डिस्कस हियर कि हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून है वो सी से लैंड की तरफ जा रही है. You know all when your wind come from the sea to land, they pick up the moistures. तो moisture pick up करती हैं और पूरे पार्ट में rainfall करती हैं. Okay, so 3/4 of the total annual rainfall of India is received during this season. This means rainy season. कि almost 3/4 rainfall जो annual rainfall होती है हमारी कंट्री में we get by the southwest monsoon.
और इसी सीजन में रेनी सीजन हम गेट करते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ मानसून विंड बियॉन्ड द साउथ केरला इज इन द फॉर्म ऑफ टू ब्रांच. मीन्स यहाँ एंटर होने से पहले इसकी टू ब्रांचेस होती हैं. एक ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच, सेकंड है बे ऑफ बंगाल ब्रांच. अब इन टू ब्रांचेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल branch. Okay, just see here the Arabian Sea branch of southwest monsoon strike the western coast of India in Kerala on 1st June. The windward side of the Sahyadri receive very heavy rainfall. Means this is your Western Ghat, and here your southwest monsoon branch of Arabian Sea. We talk about here Arabian Sea branch. Okay, so these winds strike with the Western Ghat. Western Ghat means it is a mountain. We already discussed, when your moisture and winds strike with the mountain, they move upward side or according to high temperature decrease and condensations are there. और कंडेंसेशन होगी तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगी. तो यहाँ पर हैवी रेन होगी. तो ऑलवेज विंडवर्ड साइड में दैट साइड से विंड आ रही हो. ओके, तो दैट साइड हैवी रेन होती है, और जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो उसको लीवर्ड साइड इज आल्सो नोन एज रेन शैडो एरिया. तो यहाँ रेनफॉल कम होती है. तो मींस दिस योर वेस्टर्न घाट. तो इन वेस्टर्न घाट में क्या है, लाइक दिस हमारे माउंटेन है. सो जब ये आपकी साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक विद द वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड ये दैट साइड हैवी रेनफॉल करते हैं. तो इसके दैट साइड हैवी रेनफॉल होती है. इन दिस पोर्शन हैवी रेनफॉल होती है. ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि ड्यू टू द obstacle of western ghat, the western side of western ghat get heavy rainfall because southwest monsoon firstly strike with the western ghat. Okay, so this portion जो है ये हमारा heavy rainfall get करता है. Okay, after that crossing the western ghat they overturn the Deccan plateau. This is your Deccan plateau. After that जब ये heavy rainfall कर देगा उसके बाद ये आगे मूव करेगा. Okay, जब आगे मूव करेगा तो ये एंटर करेगा डेक्कन प्लेट्यू में. सो डेक्कन प्लेट्यू एंड मध्य प्रदेश कॉजिंग फेयर रेनफॉल. यहाँ फेयर होगी, मीन ना ज्यादा कम होगी. ओके, फेयर बिकॉज मैक्सिमम मॉइस्चर यहाँ सेटल कर दिया, लिटिल मॉइस्चर उसके बचेगा तो आगे रेनफॉल करेगा. ओके, फेयर रेनफॉल होगी. आफ्टर दैट देयरफॉर दे एंटर इन द गंगा प्लेन एंड मिंगल विद द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. आफ्टर ये एंटर कर जाती है गंगा प्लेन में. ये सारा क्या है, गंगा प्लेन है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. ठीक है, और इसके बाद यहाँ से जो सेकंड ब्रांच आपकी आएगी उसके साथ ये मिंगल मींस मीट कर जाना या मीट कर जाता है. ओके, सो वन ब्रांच ऑफ हियर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होता है कि व्हाई राजस्थान गेट लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन. देखो यहाँ से मॉइस्चर गेट करिए तो यहाँ हैवी रेनफॉल होना चाहिए बिकॉज ये नियर द सी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेनफॉल कम होती है. व्हाट इज द कॉज? यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बहुत सारे अनेक टाइप के तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है. फर्स्ट टाइप ऑफ कि व्हाई राजस्थान गेट रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर, व्हाई जयपुर गेट रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर, व्हाई जोधपुर गेट रेनफॉल वेरी लेस रेनफॉल, बिकॉज ये सारी सिटीज का है राजस्थान में. ओके, सम टाइप क्वेश्चन आपसे आता है कि व्हाई अरावली रेंज रिसीव स्केंटी रेनफॉल. यू नो टू ऑल इन राजस्थान में क्या है, हमारी अरावली रेंज है. ओके, अब राजस्थान में रेनफॉल ना होने के टू मेन कॉज है. ओके, फर्स्ट कॉज क्या है कि जब आपकी साउथ मानसून एंटर करती है यहाँ पे, सो रेनफॉल कब होगी, जब बीच में कोई ऑब्स्टेकल आएगी उससे वो स्ट्राइक करेगी और रेनफॉल करेगी. लेकिन आपकी जो अरावली रेंज है ये बिल्कुल पैरेलल है साउथ वेस्ट मानसून के. तो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से क्रॉस करती है तो ये बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है और आगे क्रॉस कर जाती है. जब तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगी रेनफॉल नहीं होगी. ओके, क्योंकि एयर का कूल होना जरूरी है, और जब किसी माउंटेन से आपकी एयर टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वो अपवर्ड मूव करती है, अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर डिक्रीज होता है. तो ड्यू टू दैट यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है. ओके, लेकिन राजस्थान में नो ऑब्स्टेकल इज देयर. अरावली रेंज पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून, सो इट डज नॉट ऑफर एनी ऑब्स्टेकल इन द बे ऑफ विंड. कोई यहाँ पर ऑब्स्टेकल नहीं है. दैट्स व्हाई दिस एरिया गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. और सेकंड पॉइंट क्या है इसका, द मॉइस्चर लेडन विंड
ये मॉइस्चर लेडिंग विंड है, ये जो विंड आ रही है साउथ वेस्ट मानसून, दे कम फ्रॉम सी टू लैंड, इसका क्या है, मॉइस्चर है, इसको बोलते हैं मॉइस्चर लेडन विंड, पासिंग ओवर द राजस्थान, जब वो राजस्थान से क्रॉस करती थी। सो डू नॉट सैचुरेट, ये सैचुरेट नहीं हो पाती है, ये सैचुरेट नहीं हो पाती है। सैचुरेट मीन्स, सैचुरेट होता है जितनी कैपेसिटी एयर की है पूरी तरह से फिल हो जाना, उसके बाद वो रेनफॉल स्टार्ट कर देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से इसकी कैपेसिटी और इंक्रीज होती है, जब तक एयर आपकी कूल नहीं होगी ये कंडेंस नहीं होगी, रेनफॉल नहीं करेगी, ओके। तो ड्यू टू टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारी जो मॉइस्चर विंड है वो सैचुरेट नहीं हो पाती है, तो ड्यू टू दैट यहाँ पर रेनफॉल, इसकी जो कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, वो और इंक्रीज होती है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ड्यू टू दैट यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, ओके। द टू मेन कॉज हियर, फर्स्ट इज अराबियन रेंज parallel to the southwest monsoon, so it does not offer any obstacle in the way of wind. Or second point, the moisture and wind passing over the Rajasthan do not saturate as the heat in the desert region, so increase its capacity to hold the moisture. That's why Rajasthan area get very little rainfall. This is your first branch, Arabian Sea branch. So now we discuss here Bay of Bengal branch. So we start second point, the Bay of Bengal branch. This branch is originally directed towards the coast of Myanmar and part of southeast Bangladesh. मीन्स आपकी जो ये विंड है ये मूव करिए दैट साइड टूवर्ड्स द म्यांमार, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है, इनकी तरफ मूव करती है, ठीक है। आफ्टर दैट बट द अराकन योमा, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, उसकी डायरेक्शंस लाइक दिस है, दिस योर माउंटेन रेंज, इसका नाम है अराकन योमा बाई OMA, अराकन योमा। जब आपकी साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक करिए अराकन योमा से, तो ये इसको डिफ्लेक्ट करिए टूवर्ड्स द इंडिया, ओके। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, जस्ट सी केयरफुली, द मानसून देयरफॉर एंटर बे ऑफ बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ द साउथ वेस्टली, मीन्स ये डायरेक्शन जो उनकी है साउथ वेस्ट है। जब ये इसके साथ स्ट्राइक करिए, इसके साथ अराकन योमा माउंटेन के साथ, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन फिर साउथ और ईस्ट हो जाती है, साउथ वेस्ट की जगह, इंस्टेड ऑफ द साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाती है। आफ्टर स्ट्राइक विद द अराकन योमा दे कन्वर्ट टुवर्ड्स द साउथ नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ओके। सो वन ब्रांच ऑफ मूव्स वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन रीचिंग एज पर द पंजाब। तो यहाँ से इसकी टू ब्रांचेस बन जाती है, एक ब्रांच एंटर कर जाती है ईस्टर्न वाले पार्ट में और वन ब्रांच डायरेक्टली एंटर कर जाती है गंगा प्लेन में, और आफ्टर दैट दिस ब्रांच रीच अप टू द पंजाब, ठीक है। सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल बोथ आर मीट टुगेदर इन द गंगा प्लेन, ओके। सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अब इसकी बात करें रेनफॉल की, अमाउंट ऑफ रेनफॉल मानसून डिक्लाइन ट्रेंड एज अ विंड मूव वेस्टवर्ड साइड, कि जैसे आपकी विंड वेस्टवर्ड साइड मूव करती है रेनफॉल कम होती जाती है, ओके। दीज गेट ड्रायर एंड ड्रायर एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे सी से डिस्टेंस इंक्रीज होता है आपकी विंड ड्राई हो जाती है, ओके। बिकॉज इसके पास जो मॉइस्चर होगा पहले वो शट डाउन कर देगा, थोड़ा आगे कर देगा, आफ्टर दैट ये ड्राई होती जाती है जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है सी से, ठीक है। सो ड्यू टू दिस कलकत्ता रिसीव 190, देखो आपका कलकत्ता यहाँ पर है, ये रिसीव करता है रेनफॉल नियर अबाउट 190 सेंटीमीटर। अगर हम पटना करें बिहार की कैपिटल तो ये कहता है 105 सेंटीमीटर रेनफॉल, अगर हम इलाहाबाद करें तो ये कहता है 91 सेंटीमीटर, अगर लखनऊ की बात करते हैं तो वो 89, ठीक है। अगर बात करें हम आगे जाके दिल्ली की तो वहां पर जाके 51 डिग्री सेल्सियस जाता है, ओके। तो मीन्स हमारी जो रेनफॉल होती है जैसे डिस्टेंस बढ़ता था सी टू लैंड, सी से इनसाइड की तरफ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपकी रेनफॉल कम होती जाएगी, ओके। सो वन ब्रांच ऑफ दिस एंटर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया 3 हिल्स है इन मेघालय। सो
वर्ल्ड की जो हैवीस्ट रेनफॉल होती है मॉनसून रामप्लीस है आपका, मॉनसून रामप्लीस। यहाँ वर्ल्ड की हैवीस्ट रेनफॉल होती है बिकॉज यहाँ पर जो एरिया है ये विंडवर्ड साइड पड़ता है ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून की, दैट्स व्हाई दिस रीजन गेट हैवी रेनफॉल। ओके, लाइक दिस यहाँ पर भी विंडवर्ड साइड है और यहाँ पर हैवी रेनफॉल होते हैं पूरे होल वर्ल्ड में। ओके, दिस इज टॉपिक टू डिस्कस हियर, रेनी सीजन in our country, the climate of India. To discuss here rainy season. Okay, first we discuss here in this topic temperature. After we discuss the pressure and wind. After rainfall, it was two part, Arabian Sea branch or Bay of Bengal branch. Okay, and after that first we discuss here Arabian Sea branch, उसके बाद Bay of Bengal branch. Okay, so keep in the mind कि जैसे आपका विंड सी से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा रेनफॉल कम होती जाएगी। ओके, बिकॉज यहाँ से जो मॉइस्चर कैरी करेगी तो उनके मॉइस्चर वो सेट डाउन करती जाएगी तो रेनफॉल कम होती जाएगी। ओके, सो दैट्स व्हाई हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट है ये रेनफॉल लेस रेनफॉल गेट करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन एज कम्पेयर टू द नियरेस्ट एरियाज दोज आर लाइंग नियर द सी। ओके, सो दिस इज योर टॉपिक टू डिस्कस हियर। थैंक यू। Sorry, one topic here on ITCZ. Okay, intertropical convergent zone. You know, told this is a equatorial low pressure area, or this one tropical high pressure area. Okay, you've been trade winds there, where trade winds meet together near the equator is called ITCZ zone. ITCZ zone means intertropical convergent zone. ये हमारी ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, and here south east trade winds in the southern hemisphere, where these two trade winds meet near the equator. जहां ये दोनों winds आपस में meet कर रही है near the equator, उस particular regions को हमने नाम दिया है ITCZ, intertropical convergent zone. Thank you.